हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मिडिएवल इंडिया, एंड आल्सो वी विल ट्राई टू कवर सम इन्वेजन्स फ्रॉम पर्शियंस एंड टर्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। Let's start with संगम लिटरेचर। ओके, सो संगम लिटरेचर था क्या? So Sangam was basically Sangam means assembly. Okay, Sangam means assembly of Tamil poets. Okay, and it was done under the royal patronage of Pandyan kings of Madurai. Okay, so Madurai is the location, and which dynasty? Pandya. Okay, so if you remember the South India, uh, so Pandyas were prominent in this region. This was the region where Pandyas were prominent, and this region was for Cheras, and this was the reason for Cholas. Okay, in the ancient times. Okay, and so Sangam literature is associated with which dynasty? It is associated with Pandyan or Tamil dynasty. Okay, so Pandyan was a Tamil dynasty. Okay, so there were three Sangams arranged. Like there was three Sangam assemblies arranged. Out of those three, in the first, it is said there is nothing left, like no information. It was done very early, so there is no particular information for this first Sangam literature. But there is some evidence which shows that 89 kings were there in this assembly. Okay, and also in the second, again, so basically all these three are taking place in Madurai. Okay, location is Madurai. Okay, and in Madurai also they are telling some parts, like for example, this is North Madurai, and this is Kapatapuram of Madurai. Okay, so Kapatapuram region of Madurai. But this is not very important. The significant thing is in the first 89 kings were there. In the second, Tolkappiyar, Tamil grammar. Okay, so there is a book. There is a book called Tolkappiyar. Okay, Tolkappiyar. Okay, so it is what? It is Tamil grammar. This book tells us about Tamil grammar. It is very famous book. So it was compiled in this second assembly. Okay, and in the third assembly, two books were compiled. Two famous books were compiled, and they were Ettu Togai, and Pattu Pattu, and Pattu Pattu. Okay, so these were the three assemblies, Sangam assemblies. Okay, let's again move deeper into the Sangam literature. So Sangam literature was divided into two parts. Okay, one was narrative. Like it basically जो भी हुआ किसी के लाइफ में उसको नरेट कर दिया गया. And one was डिडैक्टिक, मतलब इस स्टोरी का मोरल होगा. ठीक है, इस स्टोरी का दिस स्टोरी विल लीड टू अ मोरल. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल था ना, इसका एग्जाम्पल था मेलका नक्कू. इसका एग्जाम्पल था मेलका नक्कू, और इसमें 18 मेजर वर्क्स थे. ठीक है, मतलब बड़े बड़े वर्क्स थे. इस 18 में जो 8 थे
देवर एंथोलॉजीज। एंथोलॉजी पता है क्या होता है? एंथोलॉजी इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और कलेक्शन ऑफ पोएम्स। बेसिकली इट इज अ कलेक्शन, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा। तो 8 एंथोलॉजीज है और 10 आइडल्स है। आइडल्स इज शॉर्ट पोएम, या मतलब पोएम या फिर शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज है या पोएम्स, मतलब इक्के दुक्के, मतलब समझ रहे हो? बेसिकली ये 8 बड़े बड़े कंपाइलेशन हो गए और 10 थोड़े से छोटे, बट स्टिल दे आर मेजर, ठीक है। डिडैक्टिक में हुआ तुम्हारा कील का नक्कू। ओके, सो एक मेल का है, तो मेल का मतलब समझ रहे हो, मेल का है तो मेजर है, मतलब एम है तो ये बड़ा होगा, और जो किलका है वो छोटा है, ठीक है। किलका है वो माइनर वर्क्स, 18 माइनर वर्क्स, ठीक है। तो यही है, ये तुम्हारा संगम लिटरेचर के बारे में है। उसके बाद संगम लिटरेचर में ना कुछ बुक्स भी, एक बहुत फेमस बुक है, दैट इज तिरुकुरल। तिरुकुरल, ओके। तो दिस बुक इज अबाउट फिलोसफी। ये फिलोसफी और विजडम के बारे में है, मतलब विजडम सेइंग्स ये सब है इसमें। एंड फिर इसके 2 एपिक्स हुए, संगम में 2 एपिक्स हुए जो फेमस है, 2 एपिक्स, ठीक है। ये दोनों एपिक्स पता है 6th सेंचुरी एडी के आसपास लिखे गए थे, ठीक है। 6th एडी के टाइम पे लिखे गए, ठीक है। 2 एपिक्स कौन कौन है भाई, दोनों के नाम हम लोग देख लेते हैं। तो एक है सीलप्पा पड्डीकरम, ओके, सीलप्पा अडिकरम, ठीक है। तो ये क्या है पता है? दिस इज अ लव स्टोरी एक्चुअली। दिस इज अ लव स्टोरी। लव स्टोरी किसका किसका है भाई? तो देयर इज अ गाय कॉल्ड कोवलन, ठीक है। इसकी शादी हुई रहती है एक नोबल, एक नोबल की बेटी से, कन्नगी, ओके। कन्नगी इज हिज वाइफ, ये वाइफ है। कन्नगी इसकी वाइफ है, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। बट उसके कोर्ट में एक ऐसी एक वुमेन रहती है, दैट इज माधवी, ओके। एंड ही लव्स माधवी, ठीक है। तो माधवी एंड इसका, लाइक दे लव ईच अदर। तो ये स्टोरी है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी। तो सिलप्पड्डीकरण करम में जो लव स्टोरी है उसमें कोवलन जो है, ही इज ऑलरेडी मैरिड टू कन्नगी, बट माधवी को वो लाइक कर रहा है, ठीक है। सो दिस लव स्टोरी इज रिटन इन विच बुक? सिलप्पड्डीकरम, ओके। यू कैन रिमेंबर लाइक शीला, पड्डी एंड करम, ओके। शीला, पड्डी, करम, ठीक है। फिर देयर इज अनदर बुक विच इज रिलेटेड टू दिस। इसी बुक के ऊपर रिलेशन में एक बुक और बनाया गया, विच इज मनी मेकलई। मनी मेकलई, मनी मेकलई, ये पता है किसके बारे में है? इट इज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन, ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, ओके। जो कोवलन एंड माधुरी से जो बच्चे, माधवी, हाँ हाँ हाँ, मैं लाइक है तो तीसरा पेज, बट उससे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ही स्विच कर लेंगे, ये बस देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है ये संगम लिटरेचर का, ठीक है। या ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो कोवलन एंड माधवी का जो की जो बेटी हो रही है ना, उसके लाइफ में जो एडवेंचर्स हुए, जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, दैट इज रिटन इन मन्नी मेकलई, ठीक है। तो ये 2 एपिक्स हो गए संगम लिटरेचर के, वेरी फेमस एपिक्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक विच इज चालुक्याज ऑफ बदामी, ठीक है। तो चालुक्याज, इनका जो टाइम पीरियड पता है कब से कब रहता है? 543 से 755 एडी। तो अब तुम ऑब्वियसली सब कुछ एडी में ही होगा अब, ठीक है। तो क्योंकि लोग मिडिएवल में घुस रहे हैं, राइट। तो इनका जो कैपिटल था ये क्या था?
ये कैपिटल था वतापी या बादामी। ठीक है, फिर इनका जो सबसे फेमस रूलर कौन हुआ, तो वो हुआ पुलाकेशिन टू। ठीक है, इसका राइन कब से कब था, इसका राइन था 609 से लेकर 642 तक। ठीक है, तो पुलकाशिन टू ये फेमस इतना क्यों हुआ, ऑब्वियसली कुछ बहुत बड़ा बड़ा काम किया होगा, राइट। तो इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, हर्ष को रोक दिया, हर्ष को हरा दिया। इसका जो डेक्कन एक्सपीडिशन था उसमें ये रोड़ा बन गया बेसिकली, हर्ष को हरा दिया, सबसे बड़ा काम। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, तो इसका जो कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति। ठीक है, तो रवि कीर्ति इसका कोर्ट पोएट था। उसने आई होल इंस्क्रिप्शन में बहुत तारीफें करी हैं पुलकेशिन टू का, लाइक ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द चालुक्यास। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, फिर इसके टाइम पे ना ह्यून सैंग, जो ह्यून सैंग है ना, ह्यून सैंग जो हमने कल भी पढ़ा था, जो हर्षा के कोर्ट में जाता है और करीब 15 साल रहता है, तो ये इसके कोर्ट में भी आता है, इसके कोर्ट में भी आता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो बेसिकली मतलब अच्छा, ये जो चालुक्य इसका कंट्रोल पता है कहाँ पे रहेगा ना, इसका कंट्रोल मैंने कल बताया था शायद, तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर के लिए मतलब का फाइट रहेगा ये। तो चालुक्य और एक आएंगे पल्लवास, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों ना हमेशा लड़ते रहेंगे इसके लिए, तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो द्वाब है, जो एरिया है दोनों रिवर्स के बीच में, उसके लिए हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। ठीक है, तो उसी एक लड़ाई के एक पार्ट में क्या होता है कि पल्लवा का जो रूलर है, पल्लवा का जो रूलर है, बहुत ही महान रूलर है पल्लवा का, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पल्लवास, तो ये है नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन, और एक टाइटल इसका बहुत फेमस है मम्मला, इसको कहते हैं नरसिम्हा वर्मन मम्मला कहते हैं इसको। एंड इसने क्या किया, इसने तो इन्वेड किया है 642 एडी में, पुलकाशेन टू उसके टेरिटरी में इन्वेड किया एंड किल कर दिया। ठीक है, इसने किल भी कर दिया, किल्ड एंड डिफीटेड पुलकाशेन टू। किल्ड एंड डिफीटेड पुलकेशिन टू। एंड इसने और क्या किया ना, इसने कैप्चर कर लिया वटापी को, ऑब्वियसली इसका जो कैपिटल रहेगा वतापी, उसको कैप्चर भी कर लिया। ठीक है, और एक टाइटल अपने आप को नाम दे दिया वटापी कोंडा। ठीक है, लॉजिक समझ गए आप सब कुछ का, वटापी कोंडा क्यों इसका नाम पड़ गया, क्योंकि इसने वटापी के रूलर को हरा दिया। ठीक है, चालुक्य के टाइम पे पता है फेमस बहुत कुछ हुआ, मतलब सबसे ज्यादा फेमस उसका आर्किटेक्चर, उनका आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर था उनका। सो दे अडॉप्टेड दो तरह का आर्किटेक्चर लोग यूज किए, एक था वेसारा स्टाइल, वेसारा, एक था डेक्कन स्टाइल। ठीक है, डेक्कन स्टाइल एंड वेसारा स्टाइल। तो वेसारा स्टाइल में पता है क्या था, एक था ये जो आईहोल है, आईहोल एक इज अ सिटी, आईहोल, तो आईहोल में जितने भी टेम्पल्स बनाए, लाइक विष्णु टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। ठीक है, फिर एक सन गॉड का नाम है एक लोध खां टेम्पल, लोध खां टेम्पल, दिस इज ये सन गॉड का टेम्पल है। ठीक है, ठीक है, और एक है मेगुटी टेम्पल है। ठीक है, मेगुटी टेम्पल भी है। तो ये सारे टेम्पल पता है कहाँ है, आई होल में है। तो आई होल में जितने भी टेम्पल हैं वो सब क्या है, विस्तारा स्टाइल के हैं। फिर एक डेक्कन स्टाइल है, डेक्कन मतलब डेक्कन में क्या, डेक्कन स्टाइल मतलब क्या है, इसमें दो स्टाइल्स प्रोमिनेंट है। एक तो है नगारा स्टाइल, नगर स्टाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक दूसरा स्टाइल फेमस है डेक्कन डेक्कन वाले एरिया में, वो है द्रविड़ा स्टाइल। ठीक है, तो ये जो वेसारा स्टाइल है ये बस आईहोल में है, और बाकी सब जगह जैसे कि आपका पट्टाडक्कल एक एरिया है, पट्टाडक्कल, ये एक पता है ये हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है पट्टाडक्कल। तो इस यहाँ पे एक टेम्पल है दैट इज नगारा स्टाइल का टेम्पल है, वो पप्पानाथ टेम्पल है, पप्पानाथ टेम्पल। ठीक है, और द्रविड़ा स्टाइल में कौन सा है पता है, यहाँ पे पट्टाडक्कल का ही टेम्पल है, पट्टाडक्कल में ही दो टेम्पल बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। वो कौन सा है पता है,
विरूपक्ष टेम्पल, एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर। विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है। उसके बाद संगमेश्वर टेम्पल, संगमेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो ये दोनों टेम्पल्स कहाँ है पता है? पट्टाडक्कल में ही है। तो ये दोनों टेम्पल पट्टाडक्कल में ही पड़ते हैं, विरूपक्ष टेम्पल एंड संगमेश्वर टेम्पल, ठीक है, संगमेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो ये हो गया टेम्पल्स के बारे में एंड चालुक्य के बारे में। चालुक्य के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, इन्होंने बहुत सारे मतलब टेम्पल्स बहुत प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट बनाए, बहुत फेमस फेमस। जो पट्टाडक्कल है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जो आईहोल है दिस इज कॉल्ड सिटी, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। तो सिटी ऑफ टेम्पल्स क्या है, तो समझ रहे हो आप कितने टेम्पल्स बनाए होंगे इन्होंने, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं पल्लवास के ऊपर। तो हम लोगों ने किया था कि उनकी कैपिटल थी वातापी, तो पल्लवास की कैपिटल क्या रही होगी? इनकी कैपिटल थी कांची। ऑब्वियसली कांची में बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनाए होंगे। इवन कांची इज लाइक वहां पे भी बहुत सारे साइट्स है, राइट, हेरिटेज साइट्स वहां पे भी बहुत सारे हैं। तो पल्लव सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इट वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, ठीक है, इट वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी। और अगेन कृष्णा कृष्णा और तुंगभद्रा द्वाब जो है उसके लिए उसी के बीच में इनका भी रहा था, मतलब फाइट रहा था इनका इसके साथ, चालुक्य के साथ, ठीक है। इनका टाइम पीरियड पता है क्या था? इनका टाइम पीरियड था 575 से लेकर 897, तो थोड़ा सा ज्यादा है। उनका था 543 से 755, तो देख रहे हो थोड़े थोड़े से बाद बाद आए हैं, और थोड़े ज्यादा दिन तक रहे हैं, करीब 100 साल ज्यादा रहे हैं चालुक्य से। क्योंकि ये क्या था, इनका जो रूलर था नरसिम्हावर्मन मम्मला, ही किल्ड पुलकासेन, पुलकासेन मतलब वो बेसिकली खत्म ही कर दिया चालुक्य को, ठीक है। तो अब इसका सबसे जो फेमस रूलर कौन हो जाएगा? सबसे फेमस रूलर हो जाएगा इनका नरसिम्हावर्मन, वही नरसिम्हावर्मन मम्मला। और ये कौन है? ही इज वटापी कोंडा, बता मतलब इन्होंने वो खत्म ही कर दिया वहां के वंश को, ठीक है। एंड इनमें क्या प्रोमिनेंट है, तो इनका एक फेमस, इनका जो टेम्पल बनाने का जो स्टाइल है, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्लवा स्टाइल, पल्लवा स्टाइल शिखर टेम्पल, ठीक है, पल्लवा स्टाइल शिखरा, ठीक है, पल्लवा स्टाइल शिखरा टेम्पल्स। और ये पता है क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इसी के टेम्पल्स जावा, जावा मतलब वो जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो इंडोनेशिया में एक जगह है ना जावा, जावा सुमात्रा, तो वही जावा का बात कर रहा हूँ मैं, जावा। और फिर कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है। तो ये सब जगह, ये सब कंट्रीज में भी हम लोग को पल्लवा स्टाइल के शिखरा शिखरा टाइप टेम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब इनका सोच सोच रहे हो कि इनका एम्पायर कितना प्रोमिनेंट होगा, कि जावा कंबोडिया सब जगह फैला हुआ था, ठीक है। फिर अब इनके टेम्पल्स हम लोग देख सकते हैं एकदम लाइन से, क्योंकि इनके जो हर रूलर ने कुछ ना कुछ टेम्पल मस्त मस्त बनाए ही हैं, ठीक है। तो एक है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन वन है ये कब आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं 600 से लेकर 630 के करीब, ठीक है। और जो नरसिम्हा वर्मन मामला है ना, ये जो वतापी कोंडा है हमारा, ये था 630 से लेकर 600 668 तक। इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन जो महेंद्र वर्मन है, तो ये इन्होंने क्या किया, तो आरकोट में एक मंदिर बनाया, ठीक है, और एक मंदिर बनाया गुंटूर में, बेसिकली आंध्रा में बना रहे हैं, ठीक है। ये गुंटूर भी आंध्रा में पड़ता है, आरकोट भी आंध्रा में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मंदिर है, इसको इसका नाम क्या था, क्या है, भैरव कोना मंदिर, भैरव कोना, ठीक है। फिर ये जो मंदिर है दैट इज कॉल्ड अनंतेश्वर, अनंतेश्वर, ठीक है। तो अनंतेश्वर मंदिर गुंटूर में है, भैरव कोना आरकोट में है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे फेमस, फेमस कौन, वही नरसिम्हा वर्मन मम्मला। मैं बस एनएम लिख देता हूँ, ठीक है। तो एनएम क्या कर रहे हैं, एनएम क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं सप्त पगोडास, बेसिकली दो मंदिर बना रहे हैं ये, मंडप, मंडप और रथ,
मंडप और रथ दोनों बना रहे हैं, इसको दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं हम लोग? सप्त पगोड़ा। सप्त पगोड़ा। और ये पता है कहाँ पर है? अगेन, अब ये है भाई, ये मतलब नरसिम्हा वर्मन कुछ किया तो ऑब्वियसली फेमस होगा, राइट? तो ये सबसे फेमस है, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम यूनेस्को साइट है अभी के टाइम पे। और इसको हम लोग बोलते हैं ममलापुरम भी बोलते हैं। ममलापुरम क्यों बोलते हैं समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे तीसरे हैं नरसिम्हा वर्मन टू। ये नरसिम्हा, बस ये नरसिम्हा वर्मन टू है, ठीक है, ममला नहीं है ये, नरसिम्हा वर्मन टू है। ठीक है, ये ओके। तो ये है 680 से लेकर 720 तक। ठीक है, 680 से लेकर 720 तक इनका ये राजकाज है। एंड इनमें इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, और उनको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। तो ये नरसिम्हा वर्मन जो है टू जो है, इनका क्या है, 680 से लेकर 720 तक है। एंड इन्होंने कौन कौन टेम्पल्स बनाए हैं? तो इन्होंने कांची को चूज किया है अपने कैपिटल में, पहली बार ये कैपिटल बना रहे हैं, मतलब कोई मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, और फिर एक ममलापुरम में ही बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, जो कि जिसके लिए ममलापुरम फेमस सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए तो है ही, मतलब वो सब पगोडास के लिए तो है ही, जो मंडप और रथ है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा फेमस है शोर टेम्पल्स के लिए। ठीक है, तो शोर टेम्पल्स ममलापुरम में कौन बना रहे हैं? तो हमारे नरसिम्हा वर्मन टू बना रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी कैलाशनाथ का टेम्पल बनाया काली यहाँ पर कांची में। के फॉर कांची, के फॉर कैलाशनाथ। तो कैलाशनाथ टेम्पल है, प्लस एक और टेम्पल बनाया है, दैट इज वैकुंठ पेरुमल। वैकुंठ पेरुमल। ठीक है, तो दो टेम्पल बना रहे हैं, कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुमल के टेम्पल कहाँ, कांची बना रहे हैं। ये टेम्पल्स बनाने के बाद इनका पता है नाम क्या हो, इनको क्या मिल गया? इनको नाम मिल गया राज सिम्हा का। ठीक है, राज सिम्हा का इनको टाइटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर, फेमस मंदिर बना रहे हैं, कांची ममलापुरम दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे चौथे आ रहे हैं नंदी। नंदी आ रहे हैं, नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन, इनको टाइटल मिला हुआ है अपराजित का, अपराजित। अगर इफ यू रिमेम्बर, तो अपराजित आपको एक मूवी भी याद होगा, लाइक साउथ का मूवी था। तो ये अपराजित नाम वहीं से आया, नंदी वर्मन अपराजित। ठीक है, 879 से लेकर 897 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो आप समझ आपको लगा कि भी 680, ये मतलब कितना कितना बार हो गया ना, ये 650 720, ये 879, तो बीच में उतना कोई प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या क्या बड़े काम करा है? तो इन्होंने फिर से कांची में एक और मंदिर बना डाला। कांची में एक और टेम्पल बना दिया, मुक्तेश्वर एंड मतंगेश्वर का। ठीक है, मुक्तेश्वर प्लस मंगेतेश्वर, मतंगतेश्वर, सॉरी, मतंगेश्वर है actually, ठीक है, बहुत ही अजीब वर्ड्स है, राइट? तो होता है साउथ में तो ये सब होता ही है। तो मुक्तेश्वर एंड मतंगेश्वर टेम्पल्स दो बनाए कांची में, और एक एक बनाया गुड़ी मल्लम में, या फिर गुड्डी मल्लम बोल सकते हो। गुड्डी मल्लम में इन्होंने क्या बनाया? तो गुड्डी मल्लम में बनाया परशुरामेश्वर टेम्पल। ठीक है, परशु रामेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ये गुड्डी मल्लम में है। ठीक है, और ये दूसरा टेम्पल, ये रामेश्वरम वाला टेम्पल नहीं है। रामेश्वरम जो कि ऐसे अगर हम लोग मैप बनाएंगे ना, तो यहाँ पे रामेश्वरम पड़ता है एकदम, वहां पे भी एक फेमस टेम्पल है, लेकिन ये गुड्डी मल्लम में। ठीक है, ठीक है, और ये किसका टेम्पल है? तो परशु रामेश्वर टेम्पल है। ठीक है, तो ये रहा बात अब तक हम लोगों ने किया चालुक्यास और पल्लवास का। तो बेसिकली साउथ में इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन नॉर्थ में क्या हो रहा था उस वक्त? लाइक इफ यू, अगर हम लोग इमेजिन करें, तो हर्ष के बाद तो खाली ही हो गया था, वो जो 646 तक हर्ष रहा, एंड फिर उस टाइम में भी मौखरीज भी वीक ही थे। तो मतलब नॉर्थ में क्या चल रहा था, तो हम लोग नॉर्थ के बारे में देखते हैं, नॉर्थ में क्या चल रहा था। ठीक है, सो इफ अगर मैं बनाता हूँ थोड़ा सा मैप, अगर मान लीजिए कि मैं मैप ऐसे बनाता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ।
ठीक है, अगर मैं मैप ऐसे बनाता हूँ तो साउथ में पता है एक फोर्स था राष्ट्रकूटास, विच वर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, राष्ट्रकूटास वर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इनका टाइम पीरियड पता है कब से कब तक रहा? 752 से रहा इनका टाइम पीरियड टिल 973। ठीक है, 752 से ये 953 तक एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रहे। फिर एक डायनेस्टी था यहाँ अवंती का, अवंती मतलब समझ लो एमपी, अवंती का जो डायनेस्टी दैट इज प्रतिहार। प्रतिहार, इनका कैपिटल पता है क्या था? इनका कैपिटल रहा था उज्जैन या फिर कन्नौज। ठीक है, ये राष्ट्रकूटा इनका कैपिटल पता है क्या रहा था? इनका कैपिटल रहा था गुलबर्ग, एक जगह है मालखंड, और वो पता है कहां पर है? वो है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में, गुलबर्ग ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्ग, वहां मालखंड इनका कैपिटल रहा था। ठीक है, और हमारा नॉर्थ में एक डायनेस्टी था पाल का। ठीक है, पालाज, इनका कैपिटल था मुंगेर। ये समझ लो बिहार का है ये। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पाल डायनेस्टी, ये बिहार का डायनेस्टी है, मुंगेर इनका कैपिटल रहा था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है भाई? तो इनका टाइम पीरियड आपका ये सबसे लंबा है, वन ऑफ द मतलब 1750 से 1150। लेकिन देवर काइंड ऑफ वीकर, मतलब ये और प्रतिहार भी ऐसे तो 730 से लेकर 1036 से हैं, लेकिन बार बार राष्ट्रकूटास आते हैं और इन सबको हराकर चले जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे आगे कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक ये है तीनों का, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। बेसिकली जो कन्नौज शहर है उस पे अपना राजकाज बनाने के लिए ये स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, अब हम लोग तीनों डायनेस्टी को अलग अलग करके देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट डायनेस्टी हमारा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पाल डायनेस्टी। इसको इसको मैं बहुत डिटेल से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पाल डायनेस्टी बहुत अच्छे से करूंगा क्योंकि ये बिहार का डायनेस्टी है। तो इनका फाउंडर कौन? सबसे पहले इनका फाउंडर था गोपाल। 750 एडी में गोपाल ने फाउंड किया पाल डायनेस्टी। ठीक है, एंड ही एक्सटेंडेड द एम्पायर टू मगध एंड बंगाल। ठीक है, मगध और बंगाल को एक्सटेंड किया। ठीक है, इसने और क्या किया ना, ही वॉज अ बुद्धिस्ट, मतलब ये बाय रिलीजन बुद्धिस्ट था। एंड इसने क्या बनाया पता है? उदांता, उदांतापुरा, उदांतापुरा विहार इन बिहार शरीफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उदांतापुरा विहार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि उदांतापुरा विहार तो इसने बनाया करीब 750 एडी में, लेकिन फिर एक इंसान आता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये फ्यूचर ये मैं मतलब मिडिवल पढ़ाऊंगा उसमें भी एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, बट अभी थोड़ा फ्लो में आपको याद हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी 1199 में आता है और सबसे पहले इसको उड़ाता है। ठीक है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा उदंतपुरा विहार को। उसके बाद आगे बढ़ेगा और करीब 1203 के आसपास नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। और आपको पता है बहुत दिन तक, शायद 20 दिन तक चलते रहता है, इतनी सारी किताब बुक्स रहते हैं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर देगा 1203 में। तो मतलब बेसिकली ही इज काइंड ऑफ मतलब पढ़े, पता नहीं इसको क्या दिक्कत था पढ़े लिखे लोगों से, मतलब ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। ये सब जो भी इस टाइप की चीजें थी, लिटरेरी चीजें थी। ठीक है, तो हाँ, तुम लोग कहाँ पे थे? तो वी वर एट पाल डायनेस्टी। तो उसने क्या किया, उदंतपुरा पूरा विहार बनाया है बिहार शरीफ में, और फिर एक नालंदा में भी एक मोनास्ट्री बनाया है। ठीक है, मोनास्ट्री बनाया है ताकि लोग अच्छे से मतलब रह वह सके नालंदा में। ठीक है, तो ये गोपाल के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो गोपाल में ये पहला है गोपाल। ठीक है, उसके हम लोग देखते हैं दूसरा कौन है। दूसरा सबसे फेमस रूलर है, ही इज धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल है, इसका टाइम 770 से लेकर 810 रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या करता है, ही रिवाइवल करेगा, रिवाइवल ऑफ
नालंदा यूनिवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट काम रिवाइव करेगा नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और फिर एक जगह है खलीमपुर, ठीक है। खलीमपुर में क्या है, कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट है। और वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है इसकी ग्लोरीज के बारे में, इसने क्या क्या अच्छा काम किया। उसमें से एक काम अच्छा इसने ये किया, रिवाइव कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद एक 810 एडी के आसपास का एक कॉपर प्लेट है, मुंगेर कॉपर प्लेट। मुंगेर में कॉपर प्लेट है। तो वो क्या बता रहा है ना, कि इसके बाद जो रूलर है ही इज देवपाल। देवपाल इसके बाद का एक रूलर है, ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहा है मुंगेर का कॉपर प्लेट कि देवपाल इसके बाद एक रूलर है। एंड इसके लिए इसने क्या बोले, मतलब एक अच्छा कंडीशन में छोड़ा था, मतलब जो पाल एम्पायर है, डायनेस्टी है, वो एक अच्छे अच्छे शेप में है। मतलब अभी क्या बोले, मतलब उस पर मतलब फॉरेन प्रेशर ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है 810 एडी में मुंगेर कॉपर प्लेट। उसके बाद एक और कॉपर प्लेट है, वो बाद में देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इसके वॉर्स कौन कौन से थे। ये बहुत ही मजेदार 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 चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आज बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तो जैसे, अरे क्या बन गया सर, ठीक है। तो जैसे क्या हो रहा है ना, कि साउथ में अभी अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है महेंद्रपाल, ठीक है। यहाँ पर है महेंद्रपाल, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिहार डायनेस्टी का राजा है वत्सराज, ठीक है। यहाँ पर बैठा हुआ है वत्सराज, ठीक है। और राष्ट्रकूटा में उस टाइम रूलर कौन है, ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पे वत्सराज है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पर अपना महेंद्रपाल है। सॉरी, महेंद्रपाल बोल रहा हूँ, धर्मपाल है, ठीक है। तो धर्मपाल यहाँ पर है, वत्सराज यहाँ पे है, ध्रुव यहाँ पर है। तो एक दूसरे से अब लड़ेंगे ये लोग, बेसिकली मतलब कन्नौज के लिए अब फाइट हो रहा है। भाई कन्नौज पे ये लोग बैठा हुआ है, वत्सराज पहले बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी चाहिए ये चाहिए, मतलब इसको भी चाहिए कन्नौज चाहिए। तो मतलब इसको इसने कोशिश किया कन्नौज के लिए। तो वत्सराज से लड़ाई हुई, वत्सराज जीत गया, ठीक है, वत्सराज जीत गया, इसको हरा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है ध्रुव, ठीक है। ध्रुव आता है और वत्सराज को हराता है, और साथ साथ इसको भी हरा देता है, धर्मपाल को भी हरा देता है, ठीक है। तो बेसिकली समझ रहे हो आप धर्मपाल, मतलब सिचुएशन क्या रहा होगा, कि ध्रुव बेसिकली काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एकदम, मतलब दोनों जंग जीता हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक रूलर आएगा नागभट्ट, ठीक है। ये भी क्या होगा, तो ये भी धर्मपाल को तो हराएगा ही, धर्मपाल को हराता है। और उसके बाद फिर, लेकिन फिर एक रूलर आया गोविंद, इसी का डिसेंडेंट्स है गोविंद थ्री। ये आएगा और नागभट्ट को फिर से हरा देगा, ये नागभट्ट को भी हराएगा। और फिर यहाँ पर एक रूलर रहता है जिसका नाम है चक्रयुद्ध, ठीक है, चक्रयुद्ध। कन्नौज में चक्रयुद्ध जो है ना, चक्रयुद्ध, ये एक रूलर पता है, इसको बैठाया गया है, मतलब बेसिकली ही इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट रूलर बाय हिमसेल्फ। ये जो है इसको सपोर्ट कर रहा है धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल सपोर्ट कर रहा है। तो जो गोविंद है ये तो नागभट्ट को हरा ही रहा है, और चक्र इसको हरा रहा है, चक्रयुद्ध को हरा रहा है। और चक्रयुद्ध किसका सब्सिडियरी है, तो वो धर्मपाल का है। धर्मपाल और ये दोनों साथ का साथ में मतलब चल रहा है। तो इसको हरा रहा है, मतलब बेसिकली धर्मपाल को हरा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली गोविंद थ्री एंड ध्रुव ये लोग हारे ही नहीं, ये लोग जीतते रहे, ठीक है, फिर बाद में हारते हैं। बट स्टिल लाइक राष्ट्रकूटास वर द मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्स ऑफ इंडिया। तीनों में अगर पूछे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, तो वो राष्ट्रकूटास थे, ठीक है, ठीक है। फिर एक कॉपर प्लेट है, एक कॉपर प्लेट है हमारा सौजान कॉपर प्लेट, सौजान कॉपर प्लेट, ठीक है। उसमें वो जो आमोग वर्ष है, अमोघ वर्ष पता है कौन है, बताता हूँ। अमोघ वर्ष इज सन ऑफ गोविंद थ्री। अमोघ वर्ष जो है गोविंद थ्री का बेटा, गोविंद थ्री में किया था ना पिछले पीछे, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का है गोविंद थ्री, ठीक है। तो ये गोविंद थ्री का ही बेटा है अमोघ वर्ष। उसने मेंशन क्या किया है, उसने
ये जो सौजन कॉपर प्लेट उसमें लिखा है कि जो धर्मपाल एंड चक्रयुद्ध जो है, ठीक है, वो लोग सबमिट कर रहे हैं। मतलब वो लोग बेसिकली डर से ही सबमिट कर दिए, किसको, अपना जो गोविंद थ्री को अपना सबमिट कर दे रहे हैं टेरिटरी, कि भाई हमको मतलब हम ऐसे ही हार मान लें, ठीक है। तो इतना मतलब गोविंद थ्री का खौफ है कि ऐसे ही सबमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। डी और सी मतलब धर्मपाल और चक्र युद्ध, ठीक है। तो ये सब बातें रही, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत सारी चीजें और भी की, ठीक है। इन्होंने जो धर्मपाल है, लाइक बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट, भले ही ये बाहर बाहर हार जाने अलग बात है, लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ किया भी है, फाउंड किया है बहुत कुछ। अरे क्या हो रहा है। सबसे पहला है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है, क्वेश्चन आता है, शायद लास्ट ईयर आया है अगर मुझे याद ढंग से है तो। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आया हुआ क्वेश्चन है, भागलपुर, भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और ये किसने फाउंड किया है, तो धर्मपाल ने किया है, ठीक है। फिर एक विहार है, सोनपुर विहार। सोनपुर विहार पता है ना, ये मॉन्क्स लोग, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट भिक्षुज हैं, उनके रहने के लिए एक जगह है बेसिकली, ठीक है। तो ये सोनपुर विहार कहाँ किया, नॉर्थ बंगाल में किया है। नॉर्थ बंगाल में तो समझ रहे हो ना आप, दार्जिलिंग वार्जिलिंग वाला एरिया होगा, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वाला एरिया, ठीक है। फिर एक बोध गया में भी एक स्टैच्यू किया है, बोध गया में महादेव का फोर फेस्ड स्टैच्यू, महादेव का फोर फेस्ड स्टैच्यू, ठीक है। तो एक और बहुत बड़ा काम कर दिया महेंद्र पाल ने, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद देवपाल पे, ठीक है। देवपाल तीसरा नंबर हो गया इसका पाल डायनेस्टी में, ठीक है। तो देवपाल ने क्या कर रहा है, तो देवपाल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसने कंक्वेर किया है सबसे पहले ओडिशा, ओडिशा प्लस असम को कैप्चर किया है, ठीक है। उड़ीसा को उस टाइम पता है क्या हम लोग बोलते हैं, उत्कल, उत्कल रीजन था वो, उत्कल, ठीक है, उत्कला के नाम से फेमस था। और असम तो हमारा कमरूपा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया होगा ना, कमरूपा, कमरूपा एरिया का नाम था उधर, कमरूपा। एंड एक और नाम फेमस है इसका, दैट इज प्रज्ञ ज्योतिषा, प्रज्ञ ज्योतिषा, ये दोनों नाम फेमस है असम का, ठीक है। तो ये किया। फिर इवन ही रीच्ड कंबोज कंट्री, ठीक है। कंबोज कंट्री मतलब साउथ की तरफ थोड़ा भी जा रहा है ये, साउथ कंबोज फैमिली, कंबोज कंट्री, ठीक है। तो अब इसका साउथ की तरफ भी ये स्ट्रेच कर रहा है अपने एम्पायर को, ठीक है। फिर इसका एक फ्रेंड रहता है, एक इसका फ्रेंड रहता है बालपुत्र देव, बालपुत्र देव रहता है, ठीक है। ये सुवर्ण द्वीप जो एक जगह है, सुवर्ण द्वीप साउथ का एक जगह है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया है, सुवर्ण द्वीप, उसका उसका किंग है ये बालपुत्र। और इसका फ्रेंड क्यों है, कैसे हम लोग पता चला कि इसका फ्रेंड है, तो इसने एक मोनास्ट्री नालंदा में, एक मोनास्ट्री बनाने चाह रहा था ये, नालंदा में एक मोनास्ट्री, तो ये बनाने देता है, जो देवपाल वो बनाने देता है। और इवन 5 विलेज भी देता है कि 5 विलेज ले लो, इसके टैक्सेशन से उसको मेंटेनेंस कर लो, 5 विलेज के टैक्स से ये नालंदा में जो मोनास्ट्री तुम बनाओगे ना, उसको उसको उसका मेंटेनेंस कर लो, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी चीजें कर रहा है देवपाल भी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद काइंड ऑफ कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर नहीं रहता है पाल डायनेस्टी में। अब क्या होगा, सब बस हारते रहेंगे। जिसमें से एक है तुम्हारा, ऐसे एक बादल पिलर है, एक इंस्क्रिप्शन है बादल पिलर। और एक है तुम्हारा, एक और पिलर है, दैट इज भागलपुर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। भागलपुर में भी एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये बादल पिलर क्या बोल रहा है और भागलपुर इंस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि सूरपाल अगला रूलर है, सूरपाल इज द फोर्थ रूलर। और भागलपुर इंस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है कि फोर्थ रूलर कौन है, तो वो विग्रहपाल है, विग्रहपाल वन है, ठीक है।
तो ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, विग्रहपाल के बाद पता है एक और आता है, 5th नंबर पे आता है कृष्णा, ये नारायण पाल, नारायण पाल। और ये 5th सबसे हारता है, लाइक ये हारता है सबसे पहले तो, हारता है कृष्णा टू से, कृष्णा टू। ये राष्ट्रकूटा का रहता है, राष्ट्रकूटास का रहता है। और एक हारता है महेंद्र पाल से। महेंद्र पाल किसका है? तो ये प्रतिहार का है, प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का ये बंदा है, ठीक है, महेंद्र पाल और कृष्णा टू, ठीक है। तो ये इतनी बातें हम लोग रखते हैं पाल डायनेस्टी में, ठीक है। हमने सब कुछ कवर कर लिया पाल डायनेस्टी का, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लोग आते हैं सेकंड डायनेस्टी, जो कि प्रतिहार डायनेस्टी है, ठीक है। तो सबसे एक और चीज, कि पाल डायनेस्टी के बाद आता है सेना डायनेस्टी, ठीक है, सेना डायनेस्टी आएगा इसके बाद। तो ये हम लोग एक बिहार स्पेशल क्लास करेंगे ना, उसमें सारा डायनेस्टीज भी कवर करेंगे, बिहार में क्या क्या हो रहा था, एंशियंट इंडिया से मिडिएवल में क्या हुआ, और फिर मॉडर्न में क्या हुआ, लास्ट में हम लोग कवर कर लेंगे बिहार स्पेसिफिक एकदम। तो इसमें क्या बस इतना पता रखना है कि पाल के बाद सेन आ रहा है बिहार में, इन बिहार, ठीक है। और एक जो कोर्ट पोएट है इसका, मतलब ये जो सेना सेना में एक कोर्ट पोएट बहुत फेमस है, जयदेव, ठीक है। जयदेव बहुत ही फेमस कोर्ट पोएट है, इसने गीता गोविंद लिखा है, ये गीता गोविंद भी कहते हैं। और ये किसके टाइम पे था? तो लक्ष्मण सेन के टाइम था, लक्ष्मण सेन के टाइम था ये। तो बस ये इंपॉर्टेंट है सेन डायनेस्टी में कि जयदेव नाम का एक कोर्ट पोएट है, ये क्या है? ये पोएट है, ठीक है। इसका एक वर्क है गीता गोविंद, और लक्ष्मण सेन रूलर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, हम लोग का सेकंड एम्पायर कौन सा है? प्रतिहार, प्रतिहार एम्पायर। प्रतिहार का हमने किया था कि ये 730 से लेकर के से करीब 1036 तक प्रोमिनेंट रहता है। और इसका कैपिटल रहता है अवंती, अवंती मतलब अवंती में उज्जैन रहता है, या फिर कन्नौज रहता है, ठीक है। और इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर है इसका भोज, या फिर मिहिर भोज, सॉरी, ये फाउंडर नहीं, ग्रेटेस्ट है, ठीक है। फाउंडर के बारे में हम लोग को एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन शायद नहीं है अभी, क्योंकि फाउंडर कहीं मेंशन नहीं, फाउंडर नागभट्ट वन है, ओके, ओके, ठीक है। तो ये रखो, मैं हटा देता हूँ, पहले पहले फाउंडर कर लेते हैं। फाउंडर है नागभट्ट वन, नागभट्ट वन। मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जब वो जो टाइम था हमारा धर्मपाल वाला, तो धर्मपाल का नागभट्ट वन से था ना पहले फाइट होता है, नागभट्ट वन जीतता है। वो सब याद आ रहा था? थोड़ा लास्ट हमने किया था पिछले क्लासेस में, मतलब पिछले इसमें, जो नागभट्ट, नागभट्ट टू है, अच्छा, नागभट्ट टू से होता है धर्मपाल का, ये 810 ईडी के आसपास का बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग का अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी ये नागभट्ट वन आ रहा है 730 के टाइम पे, तो ये नागभट्ट वन है, ठीक है। तो इसी के जो आगे आएंगे, जो 810 एडी के आसपास जो आएंगे ना, उनका फाइट चलेगा किसके साथ? धर्मपाल के साथ, ठीक है। तो नागभट्ट वन है फाउंडर, और जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है मिहिर भोज, ग्रेटेस्ट है हमारा मिहिर भोज, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, ये विष्णु डिवोटी है, मतलब ही इज अ हिंदू, ये हिंदू है, ठीक है। ही इज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, और adopted the title of आदि, आदि वराह, ठीक है। आदि वराह का टाइटल, ये आदि वराह है, ADIVARAH, ठीक है। तो आदि वराह का टाइटल इसने लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं, हमारा तीसरा है राष्ट्रकूटास।
ये सब डिटेल में उतना नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि हमारा बिहार का कम इम्पैक्ट है, बट स्टिल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फेमस रूलर्स देखना जरूरी है। ठीक है, तो फिर है राष्ट्रकुताज, 752 से लेकर 973 एडी तक रहा इसका टाइम। इसका कैपिटल क्या है? मालखंड है। मालखंड इसका कैपिटल है। कहां पर? गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुलबर्ग, कर्नाटका का में है। ठीक है, इसका फाउंडर कौन होगा? इसका फाउंडर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, या एक और नाम फेमस है इसका, दंत वर्मन टू। दंत वर्मन टू। ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट रूलर है इसका गोविंद थ्री। और क्यों है पता ही नहीं है, हम लोगों ने इंस्क्रिप्शंस कर लिया है, हम लोगों को तो और अच्छे से पता है, राइट। गोविंद थ्री ग्रेटेस्ट क्यों है? क्योंकि सबको हराता है ये जगह के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद इसका टाइम क्या है गोविंद थ्री का? तो महेंद्र पाल से आप इमेजिन थोड़ा सा कर सकते हो उस टाइम का होगा, 793 से 814। ठीक है, उसके बाद फिर अमोघ वर्ष, ये सबसे फेमस हो गया। ये एक अमोघ वर्ष है जिसने कि वो कॉपर, सौरान में कॉपर का वो प्लेट लिखवाया था, अमोघ वर्ष। ठीक है, ये 814 से 878 तक है। इसने क्या करा है? ये अशोक टाइप का था। ये ना ये रिलीजन प्लस लिटरेचर, ये इसका फोकस था। ठीक है, ये मतलब इसको रिलीजन को ऊपर ले गया, लिटरेचर को ऊपर ले गया, और वॉर कम, मतलब वॉर पे फोकस कम किया। ठीक है, उसके बाद ये खुद एक ऑथर था। ये खुद एक ऑथर था, और इसने एक कंपाइलेशन बनाया जिसका नाम है कवि कविराज मार्ग। कविराज मार्ग, कविराज मार्ग इसका कंपाइलेशन है। और इस कंपाइलेशन पता है क्या है? कन्नड़ के पोयम्स है। ठीक है, कन्नड़ के पोयम्स हैं। ठीक है, कविराज मार्ग में कन्नड़ के पोयम्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत प्रोमिनेंट रूलर हुआ जिसका नाम है कृष्णा वन। ठीक है, कृष्णा वन हमने देखा था कि इसमें ये कृष्णा टू हरा रहा है। ठीक है, नारायण पाल को कृष्णा टू हरा रहा है। ठीक है, तो ये कृष्णा वन है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, एकदम सेम इमेजिन कर लिया, सेम ही बंदा है, अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, तो ये कृष्णा वन है। इसने क्या किया ना, ये कैलाश टेम्पल एक बहुत ही फेमस है, सबसे फेमस है, तो मैं बोलूंगा सबसे फेमस है। ठीक है, सब टेम्पल्स में सबसे फेमस है कैलाश टेम्पल। ये कहाँ है? ये एलोरा में है। ठीक है, एलोरा में है। ठीक है, एलोरा में है। तो कृष्णावन ने कैलाश टेम्पल बनाया एलोरा में। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे अर्ली आज के क्लास का लास्ट पार्ट, कि हमारा जो किंगडम था वहां पर फॉरेन इन्वेजन कैसे हुए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले वो पर्शियन इन्वेजन, पर्शिया से कुछ इन्वेजर्स आए। ठीक है, पर्शियन इन्वेजन हुआ एक 712 एडी में। ठीक है, और फिर टर्किश इन्वेजन हुए दो टर्किश इन्वेजन हुए 1000 के बाद। ठीक है, अब वो पता है किसने किसने कराया? वो एक कराया महमूद ऑफ गजनी, ये महमूद गजनी का गजनी करवा रहा है, और एक और करा रहा है मोहम्मद घोड़ी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये पर्शियन वाला, पहले देखते हैं कि पर्शियन वाला में क्या होता है और इसने क्यों ही किया, मतलब इसका इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, तो जो 712 एडी में क्या होता है, 712 एडी में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ही डिफीटेड दाहिर। दाहिर एक रूलर है, कहाँ का? सिंध का। सिंध का रूलर है दाहिर, इसको हरा रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये ऐसा, ये जो है कि ये क्या है,
ये राजा नहीं, ये कमांडर है, ठीक है, ही इज कमांडर। किस राजा का कमांडर है? तो अल हजाज का कमांडर है, ठीक है, अल हजाज, ठीक है, अल हजाज का ये है। तो ये पता है क्यों आ रहा है? ये आ रहा है लूट मार करने। बेसिकली क्या हो रहा था ना कि इनका बहुत सारा शिप्स था, मतलब शिप्स को लूटा जा रहा था, ठीक है। एंड जो सिंध का जो रूलर है दाहिर, ही कुड नॉट कंट्रोल इट। अब क्या कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर दिया और दाहिर को हरा दिया एंड सिंध वाला एरिया कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता है बहुत कुछ किया पहली बार इंडिया में। ही इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स कॉल्ड जजिया। मतलब जो नॉन मुस्लिम्स होंगे ना, उनको एक टैक्स पे करना होगा, जजिया, ठीक है। एक है, और बस 3 लोग को एग्जेम्प्ट किया, ठीक है, 3 लोग को नहीं करना होगा। तो वो है हैंडीकैप, हैंडीकैप्स को जरूरत नहीं देने का। फिर एक है विडोअर्स, ठीक है, और एक और है हमारा ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स के ऊपर पहली बार जजिया लेने वाला पता है कौन था? तो वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक। वो जो आया डायनेस्टी में तुम्हारा, तुगलक्स में जो आता है, वो पहली बार ब्राह्मण्स के ऊपर भी ये जजिया टैक्स वसूलता है, ठीक है। उसके बाद इसने और एक क्या काम किया, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर या फिर मुस्लिम इन्वेडर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। गोल्ड कॉइन्स इशू करता है इंडिया में ये, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या शुरू कर रहा है, कैमल हस्बेंड्री, कैमल्स को ला रहा है, ठीक है, कैमल्स को ला रहा है। और डेट्स जो हम लोग खाते हैं ना, खजूर, खजूर को इंडिया में पहली बार ला रहा है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और ये जो गोल्ड कॉइन्स है इसको बोलते हैं दिरहम कॉइन्स, ठीक है। तो दिरहम कॉइन्स ला रहा है, डेट्स ला रहा है, कैमल्स ला रहा है, ये सब ये इंडिया में ला रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं टर्किश इन्वेजन। तो टर्किश इन्वेजन कब हो रहा है? 1000 से लेकर 1027 तक हो रहा है टर्किश इन्वेजन। और कौन कर रहा है सबसे पहले? तो महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी कर रहा है। एंड ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? यामिनी डायनेस्टी, यामिनी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। एंड यामिनी डायनेस्टी में पता है क्या है, इसका जो फाउंडर का नाम है अलप्तकीन। इसका जो स्लेव है, इसका स्लेव है सुबुक्तगीन। ये क्या है? स्लेव है। ये बहुत ही अजीब लगेगा आपको सुन के, लेकिन ये स्लेव भी है और सन इन लॉ भी है, ठीक है। तो यही सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। मतलब बहुत टाइम क्या करते थे ना ये लोग, जो जिसको स्लेव बनाया उसी वही उसी को दामाद भी बना लिया घर का, ठीक है। तो ये लोग करते थे ये काम। तो तो सुबुक्तगीन ने कोशिश किया इंडिया के ऊपर कैप्चर, मतलब इसने अटैक किया, लेकिन हार हार गया, ठीक है। ये अटैक करने की कोशिश किया बट हारते गया, ठीक है। मतलब ये पेशावर वाले एरिया में अटैक करता है, हार जाता है। फिर आता है महमूद गजनी। महमूद गजनी क्या है? इसका स्लेव है, सुबुक्तगीन का ये स्लेव है, ठीक है, सुबुक्तगीन का ये स्लेव है। और फिर ये क्या कर रहा है? तो ये क्या करेगा, ये हराता है, ये फाइनली हराता है किसको? जयपाल को। जयपाल है, ये कहाँ का रूलर है? पेशावर का रूलर है, ठीक है। जयपाल को हरा देता है, ठीक है, जयपाल को हरा देता है और ये गजनी जीत जाता है, ठीक है। और ये कब हो रहा है ये चीज? ये हो रहा है 1001 एडी में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट इन्वेजन है टर्क्स का, फर्स्ट टर्क इन्वेजन है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टर्क सक्सेसफुल, मतलब ये सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली इसी को काउंट करेंगे, ये तो हार गया ना, ये तो कर नहीं पाया, तो इसलिए फर्स्ट टर्क सक्सेसफुल इन्वेजन कौन है? जयपाल। अगर पूछेगा फर्स्ट फेल्ड, ऐसा ऐसा कुछ बोल देगा फर्स्ट, क्या बोलूं, फर्स्ट इन्वेजन विच फेल्ड, इस टाइप का कुछ, तो सुबुक्तगीन हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो गजनी है वो क्या आएगा, वो आएगा और लूट के चला जाएगा, मतलब वो पेशावर से लूटा चला गया। वैसे ही 1025 में एक बहुत फेमस जगह पे वो अटैक कर देगा, 1025 पे सोमनाथ टेम्पल पे अटैक कर देगा,
सोमनाथ टेम्पल में बहुत सारा गोल्ड रहता था उस वक्त, ठीक है ना। तो सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करेगा, गोल्ड लूटेगा, ठीक है। और ये 16th अटैक होगा इसका। गजनी का पता है, गजनी ने इंडिया के ऊपर ना 17 अटैक्स किए हैं, 17 अटैक्स किए हैं। और सोमनाथ टेम्पल इसका 16th अटैक था, जो कि गुजरात में, ये गुजरात में है, ठीक है। इसको पता है किसने बनाया था? तो इसको बनाया था चालुक्य के एक बहुत फेमस रूलर रूलर हुआ करते थे, भीमा वन। ठीक है, ये बनाया था चालुक्य डायनेस्टी का एक रूलर है, भीमावन, उसने बनाया था। उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है गजनी अपने 16th अटैक में, ठीक है। उसके बाद 1027 में इसका आखिरी अटैक है। और वो अटैक में कहां पर है? तो ये, अच्छा, इसमें क्या, जाट्स को हराया है। 17th अटैक में डिफीटेड जाट्स, ठीक है। मतलब हरियाणा वाला एरिया, हरियाणा यूपी वाला एरिया में अटैक हुआ है। और भी कुछ कुछ उसके फेमस अटैक्स रहे हैं। एक 1011-12 में, थोड़ा पीछे जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक किया है ये मथुरा और उज्जैन में, ठीक है, ये किया। फिर 1008 में, मतलब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, में कर रहा है आनंद पाल को। आनंद पाल जो कि जयपाल का बेटा है, उसको हरा दिया, आनंद पाल को हरा दिया, ठीक है। फिर 1006 में एक बहुत फेमस टेम्पल है अगेन, नागरकोट टेम्पल, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी जाकर लूटा है बस। तो मतलब सारे टेम्पल्स, इसको इसको लूटना पाटना का इसका मतलब इसको बस लूट से मतलब है, ठीक है। और मूर्ति उर्ति लेके चला जाता था अपना। और मतलब बेसिकली ही वाज इंटरेस्टेड इन मनी, इन 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 इसको पैसा वैसा में बहुत, मतलब ये सब जो इतना जो सोने की चिड़िया थी हमारे इंडिया, तो बेसिकली उसको वहां से सारा गोल्ड वोल्ड लूटने आता था, और लूट के चला जाता था, ठीक है। इसको वहां यहाँ पे रूल करने में ज्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जो कि रह जाता है बेसिकली, वो है हमारा दूसरा घोड़ी डायनेस्टी। घोड़ी, घोड़ी कौन है भाई? तो अब ये है वही मोहम्मद बिन मोहम्मद घोड़ी, मोहम्मद घोड़ी, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? तो ये सबसे अपना पहला अटैक करता है 1175, मुल्तान में, मुल्तान में करमाठी, करमाठी मुस्लिम्स को हराता है, ठीक है, करमाठी मुस्लिम्स को हरा रहा है, ठीक है। फिर 1178 में गुजरात में अटैक करता है, और भीमा टू से हार जाता है, ठीक है। तो भीमा टू से हार जाता है, गुजरात में अटैक करता है, भीमा टू से हार जाता है। और फिर क्या करता है, भीमा टू इसको चेस करता है माउंट आबू तक, माउंट आबू तक चेस करता है, और फिर छोड़ देता है, ठीक है, वही छोड़ देता है, इसको जान से नहीं मारता है, छोड़ देता है, ठीक है। फिर 1179 में क्या होता है कि मोहम्मद घोड़ी क्या करता है ना, घोड़ी घोड़ी क्या करता है, घोड़ी कैप्चर्स सिंध, माउंट आबू मतलब समझ रहे हो, राजस्थान तक तो इसको भेज दिया। तो अब सिंध विंध तो अभी भी खाली होगा, तो सिंध एंड कश्मीर कैप्चर कर लेगा ये, सिंध और कश्मीर कैप्चर कर लेगा। फिर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हो जाएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ? पता है ना आपको, पृथ्वीराज चौहान, फेमस पृथ्वीराज चौहान और फेमस मोहम्मद बिन घोड़ी। तो मोहम्मद घोड़ी तो ये वाला में हार जाएगा, मोहम्मद घोड़ी हार जाएगा, ठीक है। और ये जो टेरेन है, ये पता है कहाँ पड़ता है? ये करनाल एरिया में पड़ता है, करनाल, हरियाणा, ठीक है। फिर 1192 में क्या होता है, सेकंड बैटल होता है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। और उसमें क्या होगा, उसमें ये जीत जाएगा, मोहम्मद घोड़ी जीत जाएगा, मोहम्मद घोड़ी जीत जाएगा, पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये है। और फिर कहा जाता है कि 1206 में घोड़ी की डेथ होती है, घोड़ी डाइड, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग आगे देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। यही हमारा फोकस रहेगा, दिल्ली सल्तनत जहां तक हो पाए वहां तक देखते हैं हम लोग।
ठीक है। और और क्या बोलूं? ठीक है, तो फिर कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो। एंड कैसा लग रहा है आप लोग को? क्या रिवीजन क्लास करना है सैटरडे संडे को? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रिवीजन करना है, ऐसे ऐसे सिर्फ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक सेशन होना चाहिए ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछा जाए एंड हम लोग डिस्कस कर सकें उसके ऊपर। तो क्या क्या लगता है, वो करना चाहिए? मे बी सैटरडे को कर सकते हैं या संडे को कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम पे, और वो क्लास का कोई टाइम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो वही करते हैं अभी हम लोग। जैसे हमारे पास और टाइम कितना बच रहा है? कल है थर्सडे और परसों फ्राइडे है। 2 दिन में हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फिनिश दिल्ली सल्तनत। और अगर और टाइम बचता है तो मुगल। ठीक है, तो मुगल में तो ऑब्वियसली खत्म नहीं होगा मुगल फ्राइडे तक। तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाई सैटरडे, मतलब वो नाइट में वो चलते रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे को क्या करेंगे ना इस बार, कि एक क्लास रखते हैं मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून के टाइम पे, हम लोग तो ऑब्वियसली लेट उठते हैं ना। तो 10 से 11 बजे के बाद ही रखते हैं, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रखते हैं सैटरडे को। एंड उसमें वी विल ट्राई टू रिवाइज। ओके, चलो देन, गुड नाइट, टेक केयर।